we are going to discuss about physical properties of carboxylic acids. So physical properties, you know, that are those properties which can be studied or measured without changing any chemical composition of the substance. So properties like odor, color, solubility, boiling point are considered as physical properties because we do not need to change the composition of the substance to measure them. So in this, we are going to talk about, first of all, physical state of carboxylic acids. You can see physical state I have mentioned over here. So physical state, up to 9 carbon atom, they are liquids at room temperature. You can see that aliphatic carboxylic acids up to 9 carbon atom are colorless liquids with unpleasant odor. That means the smell is very pungent smelling, unpleasant smell. And as we move higher than this, as the number of carbon atom increases, the physical state changes from liquid to waxy solid. That means they become solid like wax. So waxy solid means like wax, and odorless. So why they become odorless is because these solids are basically non-volatile. You know that the smell that we have, it is because of the gases. So if the solid will be non-volatile, it will not vaporize and we will not get the smell. So higher members are odorless on account of being non-volatile solids. Now we come to the boiling point. This is an important part of the physical property. The boiling point of carboxylic acids is higher than alcohols and aldehydes and ketones. So you can see over here, they are much more than alcohols and then aldehydes and ketone. The reason is that in carboxylic acid, extensive hydrogen bonding occurs. Extensive hydrogen bonding takes place, and it is so much that even in vapor state the carboxylic acid exists as dimer. You know that this is the structure of a dimer. Dimer means two molecules associate with each other. दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं और वो एक सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करता है, तो उसको बोलते हैं डाइमर. तो वेपर स्टेट में कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो डाइमर की तरह एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वेपर स्टेट में भी इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो टूटती नहीं है. इतना स्ट्रॉन्ग इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है. सो सी हियर इन दिस structure you can see that two molecules of carboxylic acid are associated by hydrogen bonding. So this is the broken lines are the hydrogen bonding which is represented here. So this hydrogen bonding can be seen in vapor state and also in the presence of aprotic solvent. Aprotic solvent means those solvent in which the ionization of carboxylic acid does not take place. You know that this hydrogen atom is ionizable. अब ये देखिए, ये OH के साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिर्फ वही हाइड्रोजन आयनाइजेबल होता है जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होता है. ये अल्काइल ग्रुप का हाइड्रोजन आयनाइजेबल नहीं होता है. कितने भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो ऑर्गेनिक एसिड में, आपको पता है कि वही हाइड्रोजन आयनाइजेबल होता है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है. तो इस मॉलिक्यूल में ये वाला हाइड्रोजन आयनाइजेबल है और सेकेंड वाले मॉलिक्यूल में ये हाइड्रोजन आयनाइजेबल है. सो इन एप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब ऐसा सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन का आयनाइजेशन ना हो, तो एप्रोटिक सॉल्वेंट में भी ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. So question could be asked to you in MCQ form that in which state carboxylic acids can exist as dimer. तो पहला होगा in vapor state और दूसरा हो गया in presence of aprotic solvent, ऐसा solvent जो proton furnish ना करे. Now you can see in this word that we are coming to talk about solubility. Now see here, solubility. You know that lower members of carboxylic acids are fairly soluble in water. They are miscible with water. Water के साथ अच्छे से mix होते हैं. Acetic acid एक common सा organic acid है जो आपको पता है. Otherwise citric acid which is present in all the citrus fruits like lemon, oranges. आपको पता है कि आप ऑरेंज जूस को वाटर के साथ कैसे भी मिक्स करो तो आराम से वो मिक्स हो जाएगा, या लेमन जूस वाटर के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाता है. इसके अलावा विनेगर वाटर के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाता है. सो दीज आर लोअर एलिफेटिक मेंबर्स. लोअर का मतलब हुआ जिसमें कम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो, उसको लोअर एलिफेटिक मेंबर्स हम बोल रहे हैं. दे आर मिसिसिबल विथ वाटर. वाई आर दे मिसिसिबल? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन. वाटर के साथ भी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, लेकिन अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है तो हायर मेंबर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करना चाहिए. तो फिर हायर मेंबर के लिए ये बात हम क्यों नहीं कह रहे हैं? हायर मेंबर के लिए हम ये बात इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स
बढ़ते जाएंगे तो उसका हाइड्रोफोबिक एंड भी बढ़ता जाता है। लुक हियर, हायर मेंबर्स आर इनसॉल्युबल ड्यू टू इंक्रीज्ड हाइड्रोफोबिक एंड। आपको पता है ये एल्काइल पार्ट जो है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। इसके अलावा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का बेंजीन रिंग एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है। तो जैसे जैसे ये हाइड्रोफोबिक एंड बढ़ता जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की सॉल्युबिलिटी वाटर में डिक्रीज करती जाती है। सो you can see the diagram over here, the structure of hydrogen bonding that I have drawn here with water molecule. So this is water molecule. You can see water molecule के दो हाइड्रोजन एटम कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहे हैं अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो एक ये मॉलिक्यूल हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का जो वाटर के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है। सिमिलरली ये दूसरा वाला मॉलिक्यूल हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का जो वाटर के एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। और तीसरा वाला ये वाला मॉलिक्यूल है जो वाटर के साथ, वाटर के हाइड्रोजन के साथ। तो एक वाटर मॉलिक्यूल जो आप देख सकते हो तीन तीन कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डेड होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन वाटर के ऑक्सीजन की वजह से और दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के हाइड्रोजन की वजह से। सो बिकॉज ऑफ दिस एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग लोअर मेंबर्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन हाइड्रोफोबिक एंड। अब ये हाइड्रोफोबिक एंड जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे, हाइड्रोफोबिक एंड बढ़ता जाएगा और वाटर में सॉल्युबिलिटी इसकी घटती चली जाएगी। next point you see that carboxylic acids are also soluble in less polar organic solvent। less polar organic solvent मतलब ऐसा organic solvent जिसकी polarity जो है वो कम है। अल्कोहल में भी हो गया, बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गए, ये सब जो है लो पोलैरिटी के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो इनमें भी ये soluble होता है। Now we come to the chemical reactivity, but before that I will take your doubts. Now I'm going to discuss about chemical reactivity, and chemical reactivity as in case of alcohols are because of two type of bond cleavage। आज हम OH bond cleavage पर फोकस करेंगे जैसा कि अल्कोहल के केस में भी होता है। तो ये OH bond का जब क्लीवेज होता है, यहाँ से जब क्लीवेज होगा उसके बाद ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिड की तरह बिहेव करेगा और इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज होंगी। तो इसकी एसिडिटी इसी वजह से होती है क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो आयनाइजेबल होता है। तो अगर ये बॉन्ड आयनाइजेबल नहीं होता तो इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज नहीं होती। सो वी विल डिस्कस अबाउट द एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ और एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम कैसे कह सकते हैं ये एक एसिड है, क्योंकि ये सिमिलर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन शो करता है जैसे कि एक मिनरल एसिड शो करेगा। तो क्लास 10th में जब आप थे आपने पढ़ा था कि एसिड्स रिएक्ट विथ मोर रिएक्टिव मेटल्स टू गिव हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे आपको पता है कि सोडियम एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट बनाता है। ये देखिए सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और हाइड्रोजन गैस की इवोल्यूशन हो गई। तो ये रिएक्शन जो है मिनरल एसिड के रिएक्शन के जैसा ही है। दैट मीन्स दिस शोज दैट कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर। अब ये सॉल्ट कैसे फॉर्मेशन होता है आपको पता है कि मिनरल एसिड के केस में भी जब आप सॉल्ट का फॉर्मूला लिखते थे, केमिकल फॉर्मूला, तो आयनाइजेबल हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह लगा दिया मेटल। तो ये मैंने आपको बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड में वही वाला हाइड्रोजन जो है आयनाइजेबल होता है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हो। तो इसमें ये वाला हाइड्रोजन जो है आयनाइजेबल है, तो इसको हटा के हमने सोडियम लगा दिया और दो हाइड्रोजन यहाँ से जब रिमूव होंगे तो देखिए हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया। सो बैलेंस करने में आपने 2 and 2 आपने यहाँ मेंशन किया हुआ है बैलेंस करने के लिए रिएक्शंस को। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जहाँ पे वो एक मोर रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। सेकेंड भी देखिए ये प्रॉपर्टी भी जो है वो एक मिनरल एसिड के जैसा ही रिएक्शन शो कर रहा है। This is neutralization reaction between acid and base. You know that acids react with base to form salt and water. तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। Carboxylic acid is reacting with a base to form salt and water. ये भी देखिए ये रिएक्शन भी आपका एक मिनरल एसिड के जैसा ही रिएक्शन है। And the third one is also a reaction like a mineral acid. Reaction with metal carbonates and bicarbonates. You have studied that
acids react with metal carbonate and bicarbonate to form salt, carbon dioxide and water. तो यहीं पर यहाँ पे मैंने रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ लिया है. यू कैन ऑल्सो राइट द रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया Na2CO3, बट द प्रोडक्ट जो बनेगा वो सेम बनेगा. सो व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड विल रिएक्ट विद अ मेटल बाइकार्बोनेट, यहाँ पे वो सॉल्ट बन गया, सोडियम सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो ये तीन रिएक्शंस जो आपने यहाँ पे पढ़े, दीज रिएक्शंस आर सिमिलर टू द रिएक्शंस ऑफ मिनरल एसिड्स दैट यू हैव स्टडीड इन class 10th. So you can say that carboxylic acids are acidic in nature. Now we will study different types of reactions, or we can see that we are going to compare the acidic strength of carboxylic acids with alcohols. Now see what happens when carboxylic acid reacts with water. कार्बोक्सिलिक एसिड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बन गया हाइड्रोनियम आयन. आपको पता है कि वाटर विल एक्सेप्ट अ हाइड्रोजन आयन और वो हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा. इसके अलावा कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा. कार्बोक्सिलेट आयन क्या होता है? RCOO-. ये हो गया R, देखिए C डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है. सो ये कार्बोक्सिलेट आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज. यहाँ पे रेजोनेंस होगा क्योंकि ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे डीलोकलाइज होगा. इस तरीके से ये देखिए ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डीलोकलाइज हुआ और साथ में ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के ऊपर डीलोकलाइज हो जाएगा. तो इस वजह से कार्बोक्सिलेट आयन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं. ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये हो गया इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर. तो जब हम इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यानी इस तरह से एक सेमी सर्कल टाइप, डॉटेड सेमी सर्कल टाइप बनाया और ये माइनस चार्ज बीच में लिख दिया. ये इंडिकेट करता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों ऑक्सीजन के ऊपर फ्लिप करते रहता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. तो ये इसका इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलेट आयन का हो गया. नाउ यू हैव स्टडीड अबाउट हाउ टू राइट केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन. दिस इज द एक्सप्रेशन, केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन. सो यहाँ पर आप देखिए, ये आपने 11th में पढ़ा था कि कैसे केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखना है. दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, रिएक्शन प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट. तो ये हो गया आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन. और आपको पता था कि 11th में आपने पढ़ा था कि प्योर सब्सटेंस का अगर प्योर लिक्विड है तो उसका हम कांस्टेंट मानते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म 1 माना जाएगा. सो Ka was acid dissociation constant. Acid dissociation constant can be written as this way, and when you take the negative logarithm of it, उसको हम pKa वैल्यू बोलते हैं. तो pKa क्या होता है? नेगेटिव लोगारिथम ऑफ Ka. नेगेटिव लोगारिथम ऑफ Ka means acid dissociation constant. This you have studied in class 11th, chemical equilibrium chapter. Now there are certain you can say certain inferences that we can draw from this part. और inference क्या है कि smaller the pKa value, जितनी pKa की वैल्यू कम होगी एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा. अगर वो pKa की वैल्यू लेस देन 1 है, इट शोज दैट द एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड. अगर वो 1 से लेकर के 5 के बीच में है, दैट मीन्स इट्स मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग, ठीक ठाक ही है उसकी स्ट्रेंथ. अगर वो 5 से 15 के बीच में है तो एसिड इज अ वीक एसिड. और अगर वो 15 से भी ज़्यादा है, इसका मतलब इट इज़ एन एक्सट्रीमली वीक एसिड. तो ये हम एसिड के बारे में इन्फरेंस निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ pKa वैल्यू. उसका नेगेटिव लोगारिथम के वैल्यू से हम इन्फरेंस निकाल सकते हैं कि एसिड की स्ट्रेंथ क्या है. सो यू नो दैट कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीकर देन मिनरल एसिड. मिनरल एसिड कौन कौन से हुए? जो मिनरल से डिराइव्ड हैं, जैसे HCl, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. इन सब एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ जो होती है वो कम होती है. पर कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ जो है वो एलिफेटिक अल्कोहल या फेनॉल से, सिंपल फेनॉल्स जो होते हैं उनसे ज़्यादा होती है. तो बेसिकली अब हमें कंपेयर करना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ जो है वो एलिफेटिक अल्कोहल या फेनॉल से ज़्यादा क्यों होती है. दे आर स्ट्रॉन्गर देन मेनी फेनॉल्स एंड एलिफेटिक अल्कोहल. और यही वाला पार्ट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इससे आपको क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं और लगभग हर साल आता है. तो ये चीज़ आपको समझना, कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है कार्बोक्सिलेट आयन का और फेनॉक्साइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन फेनॉक्साइड आयन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर.
तो कार्बोक्सिलिक एसिड एलिफेटिक अल्कोहल से इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड होता है क्योंकि एलिफेटिक अल्कोहल में रेजोनेंस होता ही नहीं है। तो जब अल्कोहल के आयनाइजेशन से बना एल्कोक्साइड आयन, एंड एल्कोक्साइड आयंस आर नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बट कार्बोक्सिलेट आयंस आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो आपको पता है कि जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसके बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो अल्कोहल एल्कोक्साइड आयन में कन्वर्ट होना नहीं चाहेगा क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट होना चाहेगा क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन एक रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है। तो अगर वो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, वो कब बनेगा? जब H+ फर्निश करे। दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन रेडिली आयनाइज एंड गिव कार्बोक्सिलेट आयन एंड H+। तो ये H+ का बनना ही एसिडिटी है। तो जैसे जैसे H+ के बनने की टेंडेंसी बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पे कि अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्यों हैं। अब हम फेनॉल से कंपेयर करेंगे कि आपने पढ़ा था अल्कोहल्स में फेनॉल्स आर मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक देन एलिफेटिक अल्कोहल, और फेनॉल से भी ज़्यादा एसिडिक जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये क्यों है कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक? तो ये द रीज़न लाइज इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब आप बोलोगे कि कार्बोक्सिलेट आयन का 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और यहाँ पे आपने 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फेनॉक्साइड आयन का बनाया है। तो कायदे से जिसके ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो उतना ही स्टेबल होता है, इसलिए फेनॉल शुड बी मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। पर ऐसा है नहीं, यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि आप कार्बोक्सिलेट आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के बीच में फ्लिप कर रहा है। इस स्ट्रक्चर में पहले वाले इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ देखिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, और दूसरे वाले स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज जो है वो दूसरा ऑक्सीजन पे चला गया। तो ये 2 ही स्ट्रक्चर बन रहे हैं, लेकिन दोनों ही स्ट्रक्चर जो है वो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब होता है ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसकी एनर्जी सेम हो। तो इन दोनों की एनर्जी जो है वो सेम होगी क्योंकि ये सेम टाइप के स्ट्रक्चर हैं। लेकिन जब हम फेनॉक्साइड आयन में आ रहे हैं, अब यहाँ पे थोड़ा फेनॉक्साइड आयन के ऊपर आप फोकस करो। फेनॉक्साइड आयन में इस वाले स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर है, लास्ट वाले स्ट्रक्चर में भी नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर है, लेकिन बाकी के जो इंटरमीडिएट 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं उसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो कार्बन के ऊपर है। तो ये जो 5 स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं ये नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब इन सब की एनर्जी सेम नहीं है। जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबल मतलब वो कम एनर्जी का होगा, लेकिन जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा एनर्जी को होगा क्योंकि वो कम स्टेबल है। सो ये 3 स्ट्रक्चर जो है मैंने बताया, ये बीच के 3 स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा एनर्जी के होंगे, और जो लास्ट और फर्स्ट एंड लास्ट जो है वो कम एनर्जी का होगा, ये ज़्यादा स्टेबल है ये दोनों। तो ये जो 5 हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फेनॉक्साइड आयन के बनाए हैं, 5 सेम एनर्जी के नहीं है। दैट मीन्स दे आर नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। Now I'm going to discuss the reason for it. The reason is रेजोनेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट इन कार्बोक्सिलेट आयन। पहला, क्यों रेजोनेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रहा है। सेकेंड रीजन है लेस इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन 1 ऑक्सीजन एटम एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम। तो जब हम इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फेनॉक्साइड का देख रहे हैं तो फेनॉक्साइड का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, फेनॉक्साइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 2 स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और 3 स्ट्रक्चर में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो कार्बन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता क्योंकि कार्बन एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो फेनॉक्साइड में जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है नेगेटिव चार्ज का इतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि कार्बोक्सिलेट आयन के 2 ही स्ट्रक्चर में हो जाता है, दोनों में ऑक्सीजन के ऊपर हो रहा है। तो इस 2 रीजंस की वजह से फेनॉल्स आर लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर, यू कैन सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फेनॉल। ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर।
Now we are going to discuss about effect of substituents, that how can we increase or decrease the acidity of carboxylic acid. Suppose to the carbon of carboxyl group, ये कार्बन जो है कार्बोक्सिल ग्रुप का कार्बन है, अगर हमने उसको ऊपर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल पुल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा. तो यहाँ पर हमने जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया है इसमें या तो पहले वाले ऑक्सीजन ऊपर वाले ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा या तो नेगेटिव नीचे वाले ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में. तो जब हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो वो जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है, एंड बिकॉज ऑफ विच कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो और स्टेबल हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल होता है इस केस में. इसको और आप समझ सकते हो, अदरवाइज समझ सकते हो कैसे कि सपोज एक हमने H हाइड्रोजन, हम कार्बोक्सिलेट आयन ना लेकर के हम कार्बोक्सिलिक एसिड की ही बात करते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा तो यहाँ पे OH लगा रहेगा. तो आपने ऑक्सीजन के अल्कोहल के केस में भी पढ़ा था कि अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो इन टर्न ये वाला जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी पुल हो जाएगा, एंड दिस विल इंक्रीज द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड की पोलैरिटी है वो भी बढ़ेगी. तो जितना पोलैरिटी बढ़ता है उसका आयनाइजेशन उतना ही आसान हो जाता है. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हमने लगाया तो ये हाइड्रोजन जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो बहुत आसानी से आयनाइज होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी जो है वो बढ़ जाएगी. अब इसका उल्टा हम देखते हैं. सपोज हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, जैसे मिथाइल ग्रुप, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप हम बढ़ाते जा रहे हैं, बल्कि अल्काइल ग्रुप लगा दिया. तो जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो सपोज यहाँ पे OH है, ये हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बीच का जो बॉन्ड है ये कम पोलर हो जाएगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट ओवर हियर. इसकी पोलैरिटी जो है डिक्रीज कर गई. तो ये तो हमने इन टर्म्स किया किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के. अब इसको आप कैसे कह सकते हो, कार्बोक्सिलेट आयन के टर्म्स में. कार्बोक्सिलेट आयन के टर्म्स में आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन को का रिलीज करेगा और दोनों ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो इंटेंसिफाई हो और बढ़ जाएगा. तो आप अनस्टेबल कर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी जो नेगेटिव चार्ज है उसको हम अनस्टेबल और कर रहे हैं. सो इट डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, ड्यू टू विच presence of electron withdrawing group increases the acidity of carboxylic acid, whereas presence of electron donating group decreases the acidity. अब ये ट्रेंड आपके NCERT बुक में दिया हुआ, ये बता रहा है ट्रेंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल, कितना आसानी से ये CF3 की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर सबसे ज्यादा होती है, और फिनाइल यानी बेंजीन रिंग जब सब्स्टिट्यूएंट के रूप में प्रेजेंट होता है उसको हम फिनाइल बोलते हैं. तो फिनाइल की इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल जो होती है वो सबसे कम होती है एंड CF3 की सबसे ज्यादा होती है. सो इट विल हेल्प यू टू अरेंज द एसिडिटी ऑफ द गिवन कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर. अब ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए. सपोज कि एक फिनाइल ग्रुप यानी बेंजीन रिंग या विनाइल ग्रुप, ये विनाइल ग्रुप है, देखिए विनाइल ग्रुप डायरेक्टली जब कार्बोक्सिलिक एसिड से अटैच होता है तब क्या होगा, क्या एसिडिटी बढ़ेगी या एसिडिटी डिक्रीज होगी. तो जब आप विनाइल ग्रुप या बेंजीन रिंग को डायरेक्टली अटैच पाएंगे COOH ग्रुप के साथ तो वहां पे रेजोनेंस तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है. ये देखिए मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है. जब रेजोनेंस होगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइज होके आएगा और यहाँ से ऑक्सीजन का पाई इलेक्ट्रॉन फिर वो डीलोकलाइज ऑक्सीजन के ऊपर हो गया. तो रेजोनेंस को देख के लग रहा है कि प्रेजेंस ऑफ विनाइल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप शुड डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बट एक्चुअली इट डज नॉट हैपन. विनाइल ग्रुप का डायरेक्ट अटैचमेंट या फिनाइल का डायरेक्ट अटैचमेंट एसिडिटी डिक्रीज नहीं करता बल्कि इंक्रीज करता है. तो क्यों इंक्रीज करता है, रीजन है ये देखिए, बिकॉज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ये वाला कार्बन, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और आपको पता है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. तो वो जितना इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के थ्रू रिलीज नहीं कर रहा है उससे ज्यादा वो विड्रॉ कर ले रहा है, वो ज्यादा विड्रॉ कर रहा है और कम रिलीज कर रहा है. ठीक है,
तो बिकॉज ऑफ दिस sp2 hybridized carbon is more electronegative due to which polarity of OH bond increases. इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है और OH बॉन्ड की पोलैरिटी को इंक्रीज कर रहा है इन स्पाइट ऑफ रेजोनेंस. रेजोनेंस होने के बावजूद वो OH बॉन्ड की पोलैरिटी को इंक्रीज कर रहा है, ना कि डिक्रीज कर रहा है. सो डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ फिनाइल एंड विनाइल ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. सो this part must be clear to you. Now we are going to do the last part. Presence of electron withdrawing group on benzene ring increases the acidity of acidity of carboxylic acid, aromatic carboxylic acid. While अगर हमने वहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया तो वो डिक्रीज करेगा. तो ये देखिए, ये है आपका 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये वाला है बेंजोइक एसिड और सिंपली मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड. तो ये देखिए, ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे OH बॉन्ड की पोलैरिटी जो है डिक्रीज कर जाएगी और इसकी एसिडिटी सबसे कम हो गई. लेकिन आपको पता है कि नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लिया है, तो इस OH बॉन्ड की पोलैरिटी जो है इंक्रीज कर गई. तो जैसे जैसे अगर हमने यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप है, अगर हम दूसरा नाइट्रो ग्रुप भी लगा दें या तीसरा नाइट्रो ग्रुप लगा दें तो इस गिवन कंपाउंड की एसिडिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दें या अल्काइल ग्रुप लगा दें तो इसकी एसिडिटी और डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को बढ़ा दिया है, जो कि बॉन्ड पोलैरिटी को फर्दर डिक्रीज करेगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.